I hope the solution is clear to everyone, and it's very easy. Let's move further. Okay, now this is a question. Find out the major product from the following reaction. Okay, alcohol is made to react with concentrated H2SO4. बेटा देखो, whenever alcohol is made to react with concentrated H2SO4, the reaction is always dehydration. And since you have heated it, तो ये कंफर्म ही कर देती है कि रिएक्शन तो डिहाइड्रेशन है, यानी कि आपने वाटर निकालना है. नाउ हाउ विल यू प्रोसीड? बेटा देखो, इसका मैकेनिज्म जो है हमारी एनसीईआरटी में बहुत क्लियरली गिवन है. ठीक है, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स का. इसमें क्या होता है, इसमें कार्बोकेटाइंस बनते हैं. और कार्बोकेटाइन कैसे बनते हैं, चलिए मैं आपको स्टार्ट करा देता हूँ मैकेनिज्म. कि देखो, एसिडिक मीडियम में तो H प्लस आयन यहाँ पे ऑक्सीजन के लोन पेयर पे आके अटैक करेंगे. दीज आर द लोन पेयर्स ऑफ ऑक्सीजन एटम. सो H प्लस आयन विल गेट अटैच्ड टू हेयर, right? H plus ion will attract the electron pairs of oxygen, and we will get this kind of molecule. This is as such, right? And we will have OH2 positive. Now, since oxygen carrying positive charge is very unstable, it will attract the electrons from this bond, and will leave the molecule as water molecule, and we will be left with the intermediate, which will be a carbocation. Now, this carbocation intermediate is a bit unstable because it is 2 degree, and we know that on moving to the adjacent carbon atom, if it is becoming 3 degree or more stable, it will do that, right? So from here what would happen, that there is a methyl group over here on the adjacent carbon atom that can move over here to make this carbocation more stable. So I would say this is called methyl shift. So what is happening in the methyl shift? Let me write the product over here. On methyl shift, it will become like this. So you will see after the shifting of methyl group, the carbocation positive charge will come over here, and by coming over here, the positive charge, the carbocation has become 3 degree. Earlier it was 2 degree. So in carbocations, this happens. This is called stability, increase in stability of carbocations. That if the positive charge getting more stable on coming to the adjacent carbon atom, then it can do that by shifting the groups from the adjacent carbon atom to that positively charged carbon. So now it is a carbocation. Now this carbocation, you have heated it. So in order to get stability, what it will do is it will take off the electrons from the adjacent carbon hydrogen bond to make a more stable alkene. So it will attract the electrons from here, and the product formed is this one. This, and there will be a double bond. So this is the final product. And always, beta, after dehydration of alcohol, you will always get alkenes. So, but the only question is which alkene. So alkene would be option 4. Is that fine? And now, where it is given in NCERT, beta, this mechanism is given, I think, in 12th class book, because this might be the method of preparation of alkenes, right? It might be given in method of preparation of alkene. If it is not given in method of preparation of alkene, then definitely it would be given in the dehydration of alcohol. So first we'll look for method of preparation of alkenes. So alkenes, this is hydrocarbon chapter, and here comes alkenes. Yes, it is given. You have the acidic dehydration of alcohols. You have read during nomenclature of this. They are represented by बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल है. बेटा यहाँ पे मैकेनिज्म इसका मैकेनिज्म यहाँ पर नहीं गिवन. तो हम 12th क्लास के एनसीईआरटी खोलते हैं जहाँ पे अल्कोहल चैप्टर हमें गिवन है. तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में प्रोबेबली ये जो मैकेनिज्म होता है ये हमें गिवन होता है. तो विल मूव टू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल. सो दीज आर द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल. ये तो फिनोल आ गया, एस्ट्रिफिकेशन आ गया. यस बेटा ये देखिए, ये रहा मैकेनिज्म. द मैकेनिज्म फॉर डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल इन्वॉल्व्स दिस. सो फर्स्ट स्टेप इज प्रोटोनेशन, जो हमने किया था प्रोटोनेशन. उसके बाद कार्बोकेटाइन बन गया. देखो, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, राइट? And after the formation of carbocation, there is removal of H plus ion from the adjacent carbon atom. So there is a formation of alkene. So the mechanism is clearly given in NCERT. All right. So this is my request to all of you that please do read NCERT. The reason is, बेटा सारा mechanisms भी वहीं से पूछे जाएंगे. ठीक है, सारे mechanism भी वहीं से पूछे जाएंगे. सारे जो equations हैं या reactions हैं, 99% रिएक्शन जो आपको एनसीईआरटी की ही पूछी जाएंगी. आप अपने कोचिंग सेंटर के अंदर जितने मर्जी डिफरेंट नोट्स पढ़ लें, डिफरेंट रिएक्शंस पढ़ लें, एडिशनल रिएक्शंस पढ़ लें,
बट उनके पूछे जाने की जो प्रोबेबिलिटी है इट इज़ लेस देन 1%। लेकिन एनसीईआरटी में जो चीज़ें गिवन है विच आर वेरी लिमिटेड और उनके पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी वही मैकेनिज्म और वही रिएक्शंस, उनके पूछे जाने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज मोर देन 90%। ओके, सो अगर आप वो करते हैं तो उसमें आपको देखो, अगर आप मेहनत एनसीईआरटी पे करेंगे तो आपको वैल्यू फॉर योर टाइम ज़्यादा अच्छे से मिलेगा, रिटर्न ज़्यादा अच्छा मिलेगा। ठीक है ना, जितना आप टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो उसमें से जो रिटर्न मिलने वाला है वो ज़्यादा मिलने वाला है आपको। ऑलराइट, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन फ्लो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड, ओके असर्शन रीजन है, कहता है एल्कली मेटल एंड देयर सॉल्ट इंपॉर्ट कलर कैरेक्टरिस्टिक कलर टू द फ्लेम। बेटा देखिए ये बात तो ट्रू है, लेकिन उससे पहले हमने एक क्वेश्चन मिस कर दिया था 33, तो पहले हम 33 करेंगे। तो क्वेश्चन है, कहता है कार्बन फॉर्म टू इंपॉर्टेंट ऑक्साइड CO एंड CO2, CO इज न्यूट्रल वेयर CO2 इज एसिडिक। बेटा देखो ये बात बिल्कुल सही है, कार्बन दो ऑक्साइड बनाता है CO एंड CO2, ये दोनों एनसीईआरटी में गिवन है। CO न्यूट्रल होता है, CO2 एसिडिक होता है। CO2 कैन कंबाइन विद वाटर इन अ लिमिटेड वे टू फॉर्म कार्बोनिक एसिड व्हाइल CO इज स्पेरिंगली सॉल्युबल इन वाटर। बेटा ये बात भी बिल्कुल सही है, CO2 क्योंकि एसिडिक है तो वाटर से रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाता है, और CO तो बेटा पानी में सोल्यूबल ही नहीं होता, ये बहुत कम सोल्यूबल होता है। ये दोनों ही इन्फॉर्मेशन आपको जो 11th क्लास की पार्ट 2 की एनसीईआरटी है उसमें पी ब्लॉक एलिमेंट का जो चैप्टर है वहाँ पे बहुत क्लियरली मेंशन्ड है। ये देखिए यहाँ पे गिवन ही है आपको, CO इज न्यूट्रल एंड CO2 इज एसिडिक इन नेचर। ठीक है, एंड रिगार्डिंग देयर सोल्युबिलिटी, बेटा देखो जहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड गिवन है आपको वहीं पर इसकी सोल्युबिलिटी के बारे में भी दे रखा है, दैट कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड ऑलमोस्ट वाटर इनसोल्युबल गैस। ठीक है ना, तो वाटर में सोल्युबल ही नहीं हो पाती है। ऑलराइट, सो नाउ कमिंग बैक टू अ पेपर, तो देखो, तो कार्बन फॉर्म टू इंपॉर्टेंट ऑक्साइड, ये बात बिल्कुल सही है, CO एंड CO2, CO न्यूट्रल है एंड CO2 कंबाइन विद वाटर, और एसिडिक क्यों है CO2, बिकॉज ये वाटर से कंबाइन करके कार्बोनिक एसिड बनाती है, और CO न्यूट्रल क्योंकि पानी में डिजोल्व भी नहीं कर पाती। तो कहने से रीजन जो है इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है ना, तो इसलिए इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 3, बोथ A एंड R आर करेक्ट, बट R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A, so this is the right answer. Let's move further. 34, बेटा 34 क्वेश्चन कहता था alkali metals and their salt impart characteristic color to the reducing flame। देखिए characteristic color to the reducing flame, बेटा reducing flame को characteristic color तो ये नहीं देते हैं, ठीक है, ये बात तो गलत है। ये सिर्फ बंसन बर्नर की जो फ्लेम होती है, फ्लेम टेस्ट जिसको हम कहते हैं, रिड्यूसिंग फ्लेम नहीं होती है, वो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम ही होती है वैसे तो। ठीक है, तो ये थोड़ा यहाँ पे स्टेटमेंट जो है ये थोड़ी सी गलत है। अच्छा, एल्कली मेटल कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग फ्लेम टेस्ट, ये बात बिल्कुल सही है, फ्लेम टेस्ट से हम डिटेक्ट करते हैं। आपको पता है हर एल्कली मेटल जो है अपना कैरेक्टरिस्टिक कलर इंपार्ट करता है, तो यहाँ पे असर्शन तो सही है, असर्शन तो करेक्ट है, सॉरी रीजन असर्शन इज इनकरेक्ट एंड रीजन इज करेक्ट, तो ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। मैं आपको ये फिर भी एल्कली मेटल्स के पेपर की जो पार्ट है उसमें मैं दिखाना चाहूँगा एनसीईआरटी में कहाँ गिवन है हमें, तो एनसीईआरटी के पार्ट 2 में एस ब्लॉक एलिमेंट, यस, तो लेट्स सी एल्कली मेटल्स के बारे में। हाँ जी, बट देखो यहाँ पे लिखा है एल्कली मेटल एंड देयर सॉल्ट इंपार्ट कैरेक्टरिस्टिक कलर टू एन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। देखो यहाँ पे कितना क्लियरली मेंशन्ड है। अब आप मुझे बताओ क्या चाहिए, और सब कुछ एनसीईआरटी में, ठीक है ना, और कलर कैसे इंपार्ट करता है। देखो सेकंड पार्ट क्या था, रीजन क्या था इसका, व्हाट इज द रीजन, कहता अल्कली मेटल कैन बी डिटेक्टेड यूजिंग फ्लेम टेस्ट, ये बात तो बिल्कुल सही है, ये भी यहाँ पे गिवन है आपको एनसीईआरटी में लिखा हुआ मिल जाएगा। And their salt impart characteristic. This is because the heat from the flame excites the outermost electron, and therefore can be detected by the respective flame test and can be देखो बेटा डायरेक्ट एनसीईआरटी, इससे ऊपर मैं आपको और एग्जांपल नहीं दे सकता। आगे बढ़ते हैं। 35, कहते पोटेशियम डाइक्रोमेट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक सॉल्यूशन, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द ऑक्सीडेशन स्टेट चेंजेस फ्रॉम, बेटा देखो एसिडिक जो पोटेशियम डाइक्रोमेट है ये एसिडिक मीडियम में बेटा हमेशा कन्वर्ट होता है क्रोमियम+3 में, और इसमें अगर आप इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाती है +6 से बेटा +3 में हो जाती है। तो इसका सही आंसर बेटा डायरेक्ट +6 टू +3 है, और ये भी आपको जो ये डेटा है ये आपको एनसीईआरटी में ही मिलेगा। एनसीईआरटी में कहाँ पे, +2 का फर्स्ट पार्ट डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। बेटा डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में ना दो ही ऐसे कंपाउंड हैं जो बहुत डिटेल में डिस्कस किए गए हैं, और वो है पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट। ये देखिए ये एनसीईआरटी खुली हुई है आपके सामने, ठीक है ना, देखो पोटेशियम परमैंगनेट है ये पोटेशियम डाइक्रोमेट, और मैंने बताया ना पोटेशियम डाइक्रोमेट किस में कन्वर्ट हो जाता है, क्रोमियम+3 में। यू कैन सी दैट इन एसिडिक मीडियम, दिस इज द रिएक्शन, है ना, किस में कन्वर्ट हो रहा है,
क्रोमियम +3 है कि नहीं डायरेक्ट एनसीईआरटी। अब आप मुझे बताइए कि एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस क्यों नहीं है हमारी लाइफ में, है ना, हमारी प्रेपरेशन के अंदर। सो इट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट बुक, एक्सट्रीमली, ऑल द फैक्ट्स आर आस्क्ड फ्रॉम एनसीईआरटी। सो लेट्स मूव फर्दर। 36. Yes, so let's move to the next question. बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिगार्डिंग द पॉलीमर्स एंड देयर यूजेस। बेटा देखिए सारे जो पॉलीमर्स हैं और ये सारे यूजेस जो हैं आपको एनसीईआरटी के अंदर बहुत क्लियरली मेंशन्ड है, बहुत क्लियरली मेंशन्ड है। अगर आप एनसीईआरटी खोलेंगे तो एनसीईआरटी में चैप्टर है पॉलीमर्स, आपके एनसीईआरटी में हमारे चैप्टर है पॉलीमर्स, तो उसमें सारे जो मोनोमर्स हैं वो हमें गिवन है। ऑल दिस मोनोमर्स आर गिवन। देखो मोनोमर्स कौन कौन से गिवन, पॉलीमर कौन कौन से गिवन है, ग्लिप्टल, नियोप्रीन, एक्रिलीन एंड एलटीपी। देखिए इन सब के, एलडीपी मतलब लो डेंसिटी पॉलीमर। तो देखिए इन सब के जो यूजेस हैं वो कहाँ कहाँ पे मिलेंगे हमें। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो नियोप्रीन। बट देखो नियोप्रीन जो है वो किसका, इसका ऐसा आपको मोनोमर पॉलीमर दोनों ही याद रखने हैं, इसका मोनोमर भी याद रखना है आपको। चलिए अभी हम इसके यूजेस पे ध्यान देते हैं। तो देखो इसका यूजेस कहाँ पे यूज हो रहा है, कैन से इट इज यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कन्वेयर बेल्ट्स, गैसकेट्स एंड होजेस। बट आपको पता है आपकी जो घर में गैस आती है, जो गैस सिलेंडर्स होते हैं, चूल्हा होता है, उसकी जो पाइप होती है वो गैसकेट्स और होजेस जो होते हैं वो नियोप्रीन के ही बने होते हैं। ठीक है, तो नियोप्रीन तो बेटा हमारा क्या आ गया, आप देखो आंसर में, आप नियोप्रीन किसके साथ मैच करने लगा, गैसकेट, फोर्थ के साथ। ठीक है, अच्छा चलिए बाकी देखते हैं। एक्रोलिन, एलडीपी कहाँ कहाँ पे गिवन है हमें। हाँ जी बेटा एक्रोलिन जो होगा वो हमें पीछे, लेट मी शो यू, रबर नोवोलैक यस बेटा आप देख रहे हो एक्रिलिन, polyacrylonitrile is used as a substitute for wool in making commercial fiber as orlon और acrylic, राइट। तो अब देखिए कहाँ पे यूज हो रही है, एज ए सब्सटीट्यूट फॉर वूल, एज ए सब्सटीट्यूट फॉर वूल हम इसको यूज करते हैं। तो देखो यहाँ पे आपको एक्रोलिन का भी पता लग जाएगा। तो एक्रोलिन का हमारे पास क्या आ गया, एज ए सब्सटीट्यूट ऑफ वूल, सिंथेटिक वूल। तो सी का क्या आ गया हमारे पास, पार्ट 2। चलिए एलडीपी पे देखते हैं। ऐसे बेटा देखो आपको बस सर्च करने पड़ेंगे, आपको सारे मिल जाएंगे। आपको अगर एनसीईआरटी आपने 3-4 बार पढ़ी है तो आप बड़े आराम से बता सकते हैं। देखो ये रहा एलटीपी, लो डेंसिटी पॉलीथीन, द फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, लो इज कमर्शियली केमिकली इनर्ट एंड टफ बट फ्लेक्सिबल एंड पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इट इज यूज्ड फॉर इंसुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कैरिंग वायर्स एंड मैन्युफैक्चर ऑफ स्क्वीज बॉटल्स, टॉयज एंड फ्लेक्सिबल पाइप्स, राइट। तो इन सबको बनाने के लिए हम एलटीपी को यूज करते हैं। तो आप देखिए कहाँ पे आपको मिल गया एलटीपी, तो इट इज यूज फॉर फ्लेक्सिबल पाइप्स। तो ऑब्वियसली बात है, फिर ये जो ग्लिप्टल है वो आपका थर्ड एज अ सॉल्वेंट यूज किया जाता है इसको, ठीक है, फॉर पेंट्स एंड लिक्विड्स। तब देखिए कहाँ क्या आंसर आपका सही हो जाएगा, A3, B4, C2, यस राइट आंसर इज ऑप्शन 4। सो ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा देखो सारा डेटा आपको ना कहाँ से डेटा याद करना है, एनसीईआरटी से डेटा याद रखना। अगर आप एनसीईआरटी को अच्छे से कर लेंगे तो आपको सारा डेटा बहुत इजीली याद हो जाएगा। और एनसीईआरटी ऐसा नहीं एक बार पढ़ने पे डेटा याद होगा, कम से कम 10 से 15 बार पढ़ोगे तो जाके डेटा याद होगा। बट पढ़ना है, पढ़ेंगे तो ही याद होगा। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी बेटा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ मेटालिक। बेटा देखो मेटालिक करैक्टर के बारे में तो आप जानते ही हैं, है ना, इसको तो हम क्या ही एनसीईआरटी से देखेंगे। हमें पता है कि अलोंग ए पीरियड जब जाते हैं तो मेटालिक करैक्टर डिक्रीज करता है, डाउन द ग्रुप आते हैं तो मेटालिक करैक्टर इंक्रीज करता है। तो हमने करना क्या बेटा, इन चारों एलिमेंट को प्लेस करके देख लेना है। जैसे पोटेशियम एल्कली मेटल्स का है, बेरिलियम एल्कलाइन अर्थ मेटल्स का, मैग्नीशियम उसके नीचे आता है, एंड देन सिलिकॉन तो बिल्कुल इधर। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा मेटालिक तो आपको पता है, क्योंकि मेटालिक करैक्टर अलोंग पीरियड जो है वो इंक्रीज करता है, सॉरी डिक्रीज करता है। तो सबसे ज़्यादा मेटालिक तो पोटेशियम हो जाएगा। उसके बाद मैग्नीशियम, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाने पे इंक्रीज करता है, फिर बेरिलियम, और सबसे कम कौन सा हो जाएगा, सिलिकॉन। तो अब देखिए कौन सी ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करती है, ऑप्शन 1 वुड बी द राइट आंसर, है ना, डायरेक्टली क्वेश्चन है ये। तो ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन था ये। आगे चलते हैं हाइड्रोजन के ऊपर। बेटा हाइड्रोजन के बारे में देखो क्या दे रखा है, ये हमें कुछ कैटलिस्ट दे रखे हैं, ठीक है, और ये इनके कुछ कौन सी प्रोसेसेस के अंदर यूज होते हैं ये चीज़ें, ठीक है। तो हम लोग फटाफट इसको हम रेफर करेंगे। हाइड्रोजन चैप्टर के अंदर बेटा सारा कुछ गिवन है हमें, ठीक है। तो लेट अस सी,
तो यस बेटा, कोल गैसिफिकेशन, वाटर गैस प्रोडक्शन, ये सारे जो है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। चलो देखते हैं, हाइड्रोजन चैप्टर खोलते हैं सबसे पहले तो लेट मी शो यू हाइड्रोजन चैप्टर। इट इज गिवन इन सेकंड पार्ट ऑफ 11th क्लास एनसीईआरटी। तो ये रहा हाइड्रोजन चैप्टर। बेटा आप देखो, वो ये रहा सिन गैस कहाँ पे यूज हो रही है, कोल गैसिफिकेशन में हम इसको यूज करते हैं सिन गैस, राइट। तो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, तो सिन गैस कोल गैसिफिकेशन में अगर हम इसको बना रहे हैं तो वाटर गैस प्रोडक्शन में कैटलिस्ट, बेटा थोड़ा कैटलिस्ट वगैरह भी देखना पड़ेगा हमें। तो वाटर गैस प्रोडक्शन के अंदर जो कैटलिस्ट है, ये देखिए वाटर गैस प्रोडक्शन है ये, तो इसमें हम कैटलिस्ट कौन सा यूज कर रहे हैं, दिस इज वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, ठीक है। तो थोड़ा सा ऐसा करते हैं, ऑप्शंस को एलिमिनेट करके फटाफट करते हैं क्वेश्चन को। तो हमने जैसा देखा सिन गैस जो है वो कोल गैसिफिकेशन में, यानी कि बी का आंसर 3 होना चाहिए। तो बी का 3 आंसर बेटा आपको कहाँ मिलेगा, यू विल गेट इन ऑप्शन 2 एंड 4, और अदर 3 में भी मिल जाएगा। अच्छा, ए का 2 वी हैव टू सी, ठीक है। ब्राइन, बेटा देखो ब्राइन सोल्यूशन से तो हम हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस बनाते हैं। ब्राइन सोल्यूशन इज फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस। इलेक्ट्रोलिसिस करनी पड़ती है ब्राइन सोल्यूशन की, तो इलेक्ट्रोलिसिस करने पे हमें हाइड्रोजन एंड क्लोरीन गैस बनते हैं। तो डी का क्या आ जाएगा हमारा 1। तो बेटा डी का 1 देखो कहाँ कहाँ पे गिवन है, बी का 3, डी का 1, इट इज गिवन इन ऑप्शन 2 एंड 3। तो ऑप्शन 1 एंड 4 तो हमने एलिमिनेट ही कर दिया, ठीक है। तो ऑप्शन 1 एंड 4 तो आप एलिमिनेट कर दो, 2 एंड 3 पे आते हैं। अच्छा, अब रही बात ए का एंड सी का। बेटा निकल कैटलिस्ट, देखो निकल कैटलिस्ट हम कहाँ यूज करते हैं, बेटा अगर हम निकल कैटलिस्ट की बात करेंगे तो जो आपकी मिथनॉल प्रोडक्शन होती है उसमें रिडक्शन करने के लिए हम निकल कैटलिस्ट यूज करते हैं। मिथनॉल हम बनाते हैं, कोबाल्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन की रिडक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट, सो वी गेट CH3OH, ठीक है ना। तो सी को हम 4 के साथ मैच करेंगे, तो एंड बी को फिर जो आपका ए है उसको हम ऑटोमेटिकली, इसका मैच हो गया 2 के साथ वाटर गैस प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। थोड़ा चेक भी कर लेते हैं हमारे हाइड्रोजन चैप्टर में, अगर वाटर गैस प्रोडक्शन के बारे में कुछ बातें दे रखी हूँ। वाटर गैस प्रोडक्शन, yield हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, yield हाइड्रोजन, कैटलिस्ट यहाँ पे गिवन है क्या, यस कैटलिस्ट यहाँ पे गिवन है बेटा निकल, ओके। तो यहाँ पे निकल कैटलिस्ट हमें गिवन है, और मिथनॉल बनाने के लिए जो हमने कैटलिस्ट यूज किया था, जो मैं आपको बता रहा था कोबाल्ट कैटलिस्ट, क्या वो यहाँ पे गिवन है, क्योंकि मिथनॉल बनाने के लिए भी जहाँ तक मुझे याद है कि हम कोबाल्ट कैटलिस्ट को यूज करते हैं। हाँ यस, कोबाल्ट कैटलिस्ट, ठीक है ना, कोबाल्ट कैटलिस्ट बिल्कुल सही है। देखो सारी रिएक्शन ही एनसीईआरटी में गिवन है। तो कमिंग बैक टू द पेपर, तो यस, तो बेटा इसका सही आंसर फिर हमारा क्या आ जाएगा, देखो कोबाल्ट कैटलिस्ट फिर हमारा यूज होगा, है ना। कोबाल्ट कैटलिस्ट हम यूज करेंगे मिथनॉल प्रोडक्शन के लिए, ठीक है। कोबाल्ट कैटलिस्ट हमारा यूज हो जाएगा मिथनॉल प्रोडक्शन के लिए। तो ए का 4 हो जाएगा और बी का 3, सी का 2 एंड डी का 1, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा। देखो सारी रिएक्शन मैंने आपको एनसीईआरटी में दिखा दी है, एनसीईआरटी से रिलेटेड ही होता है ये सारा, ठीक है। तो इसको थोड़ा हम ठीक कर लेते हैं, दिस इज कोबाल्ट, ठीक है। देखो बार बार एनसीईआरटी रेफर करने का मतलब ये है कि आप फटाफट जो है क्वेश्चंस को, आपको पता लग जाए एनसीईआरटी की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है ना। हो सकता है मैं भी कई बार मैं भी गलत पढ़ सकता हूँ, तो मैं निकल कैटलिस्ट का मैंने ये वाटर गैस प्रोडक्शन के अंदर लिखना चाहिए था हमें, ठीक है ना। तो थोड़ी गलती यहाँ पे हुई है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, यस बेटा अब देखो यहाँ पे पीकेबी वैल्यूज दे रखी हैं और यहाँ पे कुछ अमाइंस दे रखे हैं, हमने इनके पीकेबी वैल्यू के साथ मैच करना है। देखिए जो जितना स्ट्रॉन्ग बेस होता है उतनी अच्छी उसकी पीकेबी, उसकी उतनी ही कम पीकेबी वैल्यू होती है, ठीक है, जो जितना स्ट्रॉन्ग बेस है। तो लेट्स सी कौन कितना स्ट्रॉन्ग बेस है। एनिलीन, बेटा एनिलीन क्या होता है, देखो फटाफट स्ट्रक्चर बना लेते हैं पहले। तो ये हो गया एनिलीन, ठीक है। ये है इथेनामाइन C2H5NH2, ओके। ये है एन इथाइल इथेनामाइन, है ना, C2H5NH C2H5, एन इथाइल इथेनामाइन, एंड दिस इज NN डाइइथाइल इथेनामाइन, तो दिस इज NN डाइमिथाइल C2H5 होल थ्राइस N। तो ये 3 डिग्री अमाइन है बेटा, ये 2 डिग्री अमाइन है, ये 1 डिग्री अमाइन है, और ये एरोमेटिक अमाइन तो सबसे वीक बेस होता है, क्योंकि नाइट्रोजन के लोन पर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, सबसे वीक बेस है। तो पीकेबी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, तो ए का आंसर तो 3 होगा, है ना, ए का आंसर 3, तो ऑप्शन नंबर 3 तो एलिमिनेट कर दो। तो 1 to 4 में सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अब बेटा 3 डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री अमाइन में इन एक्वस मीडियम बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होता है कि 2 डिग्री अमाइन सबसे ज्यादा बेसिक होता है, और क्योंकि इथाइल अमाइंस है, देखो
एक्सेप्ट मिथाइल, इथाइल अमाइंस और इसके हायर वाले अमाइंस के लिए क्या होता है, 3 डिग्री ज़्यादा बेसिक होता है 1 डिग्री से, 3 डिग्री ज़्यादा बेसिक होता है 1 डिग्री से। तो आई कैन से 2 डिग्री वाला, यानी कि इसके लिए तो पी की भी वैल्यू सबसे कम होगी, तो सी का आंसर तो 2 आ जाना चाहिए, है ना। ए का 3, सी का 2, सी का 2 बेटा एक ही ऑप्शन में मिलेगा आपको, ऑप्शन नंबर 1 के अंदर। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। डायरेक्टली अमाइंस की बेसिक स्ट्रेंथ का क्वेश्चन था ये, और ये वाला डेटा भी हमें एनसीआर, डेटा तो नहीं मैं बोलूंगा, लेकिन एनसीईआरटी के अंदर इनका बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर में बहुत क्लियरली मेंशन्ड है, ठीक है। आपको तो मैं एक बार फटाफट रेफर करेंगे हम एनसीईआरटी को। तो 12th क्लास की अमाइंस के अंदर हमें ये ऑर्डर मिल जाएगा। तो बेसिक स्ट्रेंथ ऑफ अमाइंस, मेरे ख्याल एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन भी है ये देखो वन, ये देखिए बेटा, ओहो हो, एनसीईआरटी की इन टेक्स्ट एक्सरसाइज का डायरेक्ट क्वेश्चन उठा के दे दिया। अब बताओ, अब आप मुझे बताइए, ये देखो इन टेक्स्ट एक्सरसाइज का बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन है, ये लो इन टेक्स्ट एक्सरसाइज का डायरेक्ट क्वेश्चन, है ना। फिर आप बोलोगे यार कि एनसीईआरटी की इन टेक्स्ट एक्सरसाइज तो बेकार होती हैं, देखो डायरेक्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी में से आया हुआ। ओके, लेट्स मूव फर्दर। अब मुझे बार बार बताने की आपको, अब आपको समझ आना चाहिए कि हमें एनसीईआरटी पढ़ना और सॉल्व करना कितना इंपॉर्टेंट है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अच्छा देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस बेटा हमें दे रखे हैं, कुछ कंपाउंड है, प्रोपेनामाइन, एन मिथाइल इथेनामाइन, हेक्सेन। अच्छा हमने इन बताना है कौन से आइसोमर्स को बिलोंग करते हैं। देखो फटाफट पहले तो आप देखो यहीं पे आ जाओ, डी वाले में, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल एंड पैरा नाइट्रोफिनोल। यहाँ से देखते सारी पता लग गया, ऑर्थो ना पैरा आ गया तो मतलब ये तो पोजीशन आइसोमर है, तो डी का तो 2 आ गया। लेट अस स्टार्ट एलिमिनेटिंग ऑप्शंस। कहने से ऑप्शन 1 तो होगा नहीं कभी भी, क्योंकि डी का 2 जो है आपको 2, 4 और थर्ड ऑप्शन के अंदर गिवन है, ठीक है। चलो डी का तो 2 हो गया, आगे चलते हैं बेटा। इथेनामाइड एंड हाइड्रोक्सी इथेनाइमाइन, बेटा ये देखो कौन सा कंपाउंड है, इथेनामाइड है ये वाला, C2H5, सॉरी नॉट C2H5, CH3CONH2, ये हो गया इथेनामाइड, है ना। और हाइड्रोक्सी इथाइनिमाइन होता है बेटा ये वाला कंपाउंड, CH3COH हाइड्रोक्सी इथाइन, आइमाइन होता है बेटा ये वाला ग्रुप। तो बेटा आप देखो ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप कैसे बना होगा कि ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट कर गया, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, है ना। तो ये तो टोटोमर हो गए, तो कहने से सी वाले तो टोटोमर्स हो गए, तो सी का आंसर क्या आ गया 4। तो बेटा देखो सी का आंसर 4 हमें कहाँ गिवन है, सी का आंसर 4 हमें गिवन है, आप देखिए एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन 2। ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। सीधा आगे बढ़ो, कोई ज्यादा फालतू चीजें करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 41, व्हाट इज द मास रेशियो ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 500 ग्राम ऑफ ethylene glycol required, what is the mass ratio of making 500 gram of 0.25 molar aqua solution and 250 ml of 0.25 molar aqua solution? What is the mass ratio of ethylene glycol required for making this? अच्छा इसको बनाना और इसको बनाना है, इसके लिए कितना इनकी मास रेशियो बतानी है आपको। ओके तो देखो पहले वाले में लेट्स सपोज मास लगता है m1, राइट। तो देखो आपको पता है मोलैलिटी क्या होती है, मोलैलिटी इज इक्वल टू weight upon molecular mass into weight of solvent, mass of solvent into 1000, this is molality। यही होता है ना बेटा मोलैलिटी फॉर्मूला, A is the mass of solvent, ओके। aqueous solution तो mass of solvent accordingly हम देख लेंगे। तो I can say weight required in first case upon weight required in second case is equals to molality in first case upon molality in second case into molecular mass of ethylene glycol। बेटा कहने से मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल तो सेम ही रहने वाला है, तो कहने से इसको तो हम एलिमिनेट ही कर दें, ये तो हम एलिमिनेट ही कर दें, क्योंकि ये तो सेम रहने, जो चीज़ें सेम रहने वाली है उसको क्यों लिखना, 1000 भी सेम रहने वाला है। तो कहने से हमारे पास जो रेशियो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, m1/m2 मोलैलिटीज इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट इन फर्स्ट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन सेकंड, ठीक है। यही आ जाएगी रेशियो बेटा, यही आ जाएगी, है ना। चलो वेट तो हमें रेशियो निकालनी है। मोलैलिटी इन फर्स्ट सोल्यूशन बेटा 0.25, मोलैलिटी इन सेकंड सोल्यूशन 0.25, ये तो 0.25 हो गया, ठीक है। अच्छा मास ऑफ सॉल्वेंट इन फर्स्ट सोल्यूशन बेटा 500 ग्राम रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग 500 ग्राम ऑफ सोल्यूशन है, ठीक है। तो बेटा 500 ग्राम सोल्यूशन का मास है, उसमें 0.25 मोल आपके इथीलिन ग्लाइकोल के, जिसका मॉलिक्यूलर मास 62 है, तो यानी कि 0.25 मोल है ये, तो 0.25 मोल जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे 1000 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर। 1000 ग्राम वाटर में 0.25 मोल सोल्यूबल होंगे, तो बेटा तो सोल्यूशन बन जाएगा। आपको देखो 0.25 मोल्स का मास कितना होने वाला है, 0.25 मोल्स का मास होने वाला है 15.5 ग्राम, तो यानी कि 1015 ग्राम सोल्यूशन का मास हो जाएगा,
ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमें, क्योंकि बिकॉज ये जो मोल्स है बहुत ही कम है, तो हम यहाँ पे सीधा मान सकते हैं दिस इज 500 ग्राम सॉल्वेंट का मास फर्स्ट के अंदर, और यहाँ पे हम सीधा मान सकते हैं कितना, 250 ग्राम। वैसे यहाँ पे ना थोड़ा सा इन्होंने कन्फ्यूजन कर रखा है, ये 2:1 आ जाएगी रेशो, और ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर। वैसे ना यहाँ पे इनको थोड़ा सी जो चीज़ें है ना ईजी करनी चाहिए थी, कैलकुलेशन वैल्यूज थोड़ा क्वेश्चन अच्छे से फ्रेम। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बेटा हमें एक लिस्ट, एक कॉल टेबल दे रखा है जिसमें कोऑर्डिनेशन एंटिटीज दे रखी हैं हमें, और वेवलेंथ ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब दे रखा है। देखिए इस इन सब के अंदर अगर आप ध्यान से देखेंगे कि जो कोबाल्ट है ना, यहाँ पे कोबाल्ट है, और यहाँ पे जो मेटल एटम है वो कॉपर है, राइट। तो चलिए हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। बेटा देखिए लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड की बात चल रही है, ठीक है ना, वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड, ओके। तो बेटा अब देखो लाइट एब्जॉर्प्शन की जो वेवलेंथ होती है ना, वो किस चीज़ पे डिपेंड करती है। आपको पता है जब ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है, देखिए जब भी ऑर्बिटल स्प्लिट होते हैं दो लेवल्स के अंदर, है ना, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनता है, तो आपको पता है ये जब रेडिएशन इस पे पड़ेंगे व्हाइट लाइट, तो व्हाइट लाइट में से बेटा कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेंगे। और कितनी वेवलेंथ ऑब्जॉर्व करेंगे बेटा, अगर हम कहेंगे इनमें एनर्जी डिफरेंस है डेल्टा नॉट, तो कहने से ये व्हाइट लाइट में से वो वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर लेंगे जो कि ये नीचे वाले ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन्स को ऊपर वाले ऑर्बिटल में भेजने में काम आए, जिसको हम बोलते हैं डी ट्रांजिशंस। तो कहने से डी ट्रांजिशन करने के लिए कुछ वेवलेंथ एब्जॉर्ब कर लेंगे, बाकी वेवलेंथ को ये रिफ्लेक्ट कर देंगे। तो कहने से जो वेवलेंथ एब्जॉर्ब होगी उसकी एनर्जी कितनी होगी, दैट विल बी इक्वल टू डेल्टा नॉट, है ना। सो डेल्टा नॉट इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, लैम्डा एब्जॉर्ब्ड आप लिख सकते हैं। तो कहने से जितना स्प्लिटिंग ज्यादा होगी उतना ही जो लैम्डा एब्जॉर्ब्ड होगा वो कम होगा। तो पहले आप देखिए स्प्लिटिंग ज्यादा किन के अंदर हो रही है। देखो सबसे स्ट्रॉन्ग यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स लिगेंड है वो है CN। अच्छा सबसे पहली बात तो बड़ा आप देखिए जो 6 लिगेंड कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कहने से उनमें स्प्लिटिंग ज्यादा होती है कंपेयर टू 4 लिगेंड कॉम्प्लेक्सेस, बिकॉज आपने पढ़ा हुआ है कि जो 6 लिगेंड कॉम्प्लेक्सेस में स्प्लिटिंग होती है दैट इज ऑलमोस्ट 4/9 टाइम्स द स्प्लिटिंग इन 4 लिगेंड कॉम्प्लेक्सेस, है कि नहीं, राइट। तो अब आप देखिए तो डेफिनेटली जो इसमें है स्प्लिटिंग सबसे कम होगी, तो इसकी वेवलेंथ तो सबसे ज्यादा हो जाएगी, तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ डी की हो गई 4। तो देखो कौन सी ऑप्शन इसको मैच करती है, डी का 4, तो यानी कि 2 और 4 तो हटाओ, तो डी का 4 तो यहाँ पे फर्स्ट और 3 ऑप्शन के अंदर है। इसके बाद अब देखिए जो 6 लिगेंड कॉम्प्लेक्सेस है उसके अंदर भी किस केस में सबसे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड लगा हुआ, आपको पता है कि जो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है वो आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता लगता है, और स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में CN सबसे आगे आता है, फिर अमोनिया आता है, और फिर आता है यहाँ पे अगला लिगेंड कौन सा, क्लोरीन। तो जो CN है क्योंकि वो स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा करेगा, तो स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा करने से डेल्टा नोट सबसे ज्यादा होगा, तो लैम्डा नोट क्या हो जाएगा, सबसे कम हो जाएगा। तो सी का जो लैम्डा नोट है वो सबसे कम होना चाहिए, यानी कि सी का आंसर क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो देखो एक ही ऑप्शन के अंदर है ये, इसके अंदर तो सी का 1, डी का 4, ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। और देखिए जो भी मैंने नाम लिया आपके सामने, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हो, चाहे वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड हो, तो देखो ये सारा कुछ हमें यहाँ पे कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस के अंदर बहुत क्लियरली यहाँ पे गिवन है। वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड, है ना, कैसे हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट, डेल्टा टी डेल्टा नॉट। और मैंने अभी लिखा था ना डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 टाइम्स डेल्टा नॉट, वो देखो ये इक्वेशन, है ना। तो सब कुछ ही एनसीईआरटी के अंदर से उठा के ये देते हैं, और उन्हीं को ही अप्लाई करके हमने आंसर देने होते हैं। अच्छा ये हमने गलती उल्टा लिख दिया था, सॉरी। so दिस इज डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 टाइम्स डेल्टा नॉट, यस। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा नेक्स्ट इज ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल व्हेन एडेड टू बटर इंक्रीजेज इट्स शेल्फ लाइफ। This is assertion. A reason is butylated hydroxyanisole is more reactive toward oxygen than food. Okay. हाँ जी बेटा, तो ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल की बात चल रही है। देखो ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल जो है ये कंपाउंड एक एंटीऑक्सीडेंट होता है, और इसके बारे में हमारी एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। मैं आपको एनसीईआरटी खोल रहा हूँ अभी, ये देखिए बेटा ये हमारी एनसीईआरटी है। आप देखेंगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ मैंने चैप्टर खोला हुआ है, इसमें आप देखिए 16.4.3 के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स इन फूड। तो कैन यू सी एंटीऑक्सीडेंट्स इन फूड के अंदर द टू मोस्ट फेमिलियर हाइड्रोक्सी एनिसोल antioxidants are butylated hydroxytoluene and butylated hydroxyanisole. The addition of BHA to butter increases shelf life from months to years. Sometimes BHT and BHA along with citric acid are added to produce more effect. Sulfur dioxide sulfides are useful antioxidants for wine and beer and so on. Right? तो और बेटे ये काम कैसे करते हैं,
दे हेल्प इन फूड प्रिजर्वेशन बाय रिटार्डिंग द एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन फूड, राइट। तो ये इनका वर्किंग का तरीका है, ठीक है। तो देखिए सारा कुछ आपको एनसीईआरटी के अंदर ही गिवन है। तो यहाँ पे गिवन है ब्यूटाइलिटी व्हेन एडेड टू बटर इंक्रीजेस इट्स शेल्फ लाइफ, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, देखो डायरेक्ट लिखा हुआ है। इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड ऑक्सीजन देन फूड, यस एब्सोल्युटली, ये ज्यादा रिएक्टिव है बेटा टुवर्ड ऑक्सीजन। तो यही कारण है कि ये ऑक्सीडाइज हो जाता है ना, और फूड को ये बचा लेता है। तो बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए बेटा, 44 क्या कर रहा था, आइसोमेरिक ड्यूट्रेटेड ब्रोमाइड विद मॉलिक्यूल फॉर्मूला C4H8DBr हैविंग 2 कायरल कार्बन एटम इज, बेटा कहता है जिसमें 2 कायरल कार्बन एटम हो। तो बना के देख लीजिए, 4 कार्बन एटम है ना, एक डी लग गया, है ना, एक Br लग गया। तो आप देखो इसमें कायरल कार्बन दिख रहा है आपको, ये वाला, है ना, एक जैसे मैंने एक बना दिया। अच्छा लेकिन ये कह रहा है एक नहीं, हमें तो 2 कायरल कार्बन चाहिए। तो बेटा 2 कायरल कार्बन क्या हो जाएंगे, आप यहाँ पे लगा दो, है ना, देखो तो ये बन जाएगा, है ना। इसमें 2 कायरल कार्बन, जैसे देखो क्या बन गया, 2 ब्रोमो 2 ड्यूट्रो। देखो यहाँ पे 1 2 3 4, जब नेमिंग करेंगे तो 2 ब्रोमो 3 ड्यूट्रो होना चाहिए ना। सो इट शुड बी 2 ब्रोमो 3 ड्यूट्रो ब्यूटेन। तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, ठीक है। कायरल कार्बन जिसमें चारों ग्रुप डिफरेंट लगे। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। आगे चलते हैं बेटा, सॉल्ट एनालिसिस। देखो सॉल्ट एनालिसिस ना जेई वालों का आजकल इतना फेवरेट है ये, ठीक है। क्वेश्चन ये था, क्लोराइड सॉल्ट सॉल्यूशन, द क्लोराइड सॉल्ट सॉल्यूशन acidified with dilute HNO3 gave a curdy white PPT A on addition of AgNO3. A on treated with ammonium hydroxide gives a clear solution B. A and B respectively यार। बेटा ये जो कंपाउंड आपको दे रखे हैं, ठीक है, ये जो रिएक्शंस है आपकी बेटा, इस ग्रुप 1 रेडिकल्स, ग्रुप 1 केटायन रेडिकल्स की रिएक्शन है ये। ग्रुप 1 केटायन रेडिकल्स, ये सिल्वर आयंस की रिएक्शन होती है। बेसिकली क्या होता है बेटा, जो सिल्वर आयंस होते हैं वो रिएक्ट करते हैं किसके साथ, क्लोराइड आयन के साथ। जो क्लोराइड आयन जो है ये सिल्वर आयन के साथ रिएक्ट करते हैं और क्या बना देते हैं, कर्डी वाइट पीपीटी ऑफ AgCl। और ये AgCl जो होता है, जैसे आप इसको अमोनिया के सोल्यूशन में डालते हैं, ये कॉम्प्लेक्स बना के डिसॉल्व हो जाता है। तो देखो यही बातें लिखी है ना उसने, कि कॉम्प्लेक्स बना के डिसॉल्व हो गया और कर्डी वाइट पीपीटी थे, तो पीपीटी ए बन गए ये, है ना, और सोल्यूशन बन गया इसका। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हमारा, द राइट आंसर वुड बी ऑप्शन 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ी हुई है बड़े आराम से आंसर कर सकते हैं। आगे चलते हैं। डाइपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी and by convention it is depicted by a small arrow with the tail on the negative center and head pointing toward the positive center। बेटा देखो आपको याद होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कैसे लिखते थे, HCl। तो जिस तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उस तरफ ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हेड लगाते हैं, और टेल जो होती है वो पॉजिटिव सेंटर की तरफ होती है। तो उन्होंने लिखा ना कि स्मॉल एरो विद टेल ऑन द नेगेटिव सेंटर, ये तो गलत हो गया, है ना, दिस इज रॉन्ग। टेल इज टुवर्ड पॉजिटिव सेंटर, डेल्टा पॉजिटिव, ऐसे ही होता था। द क्रॉस्ड एरो of the dipole moment symbolizes the direction of the shift of charges in the molecule. द क्रो, बेटा ये बात तो ठीक है कि चार्जेस किस तरफ शिफ्ट हुए हैं उसके बारे में ये बता देता है एरो। तो स्टेटमेंट 2 तो ठीक है, लेकिन स्टेटमेंट 1 जो है वो गलत है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन 1। आगे बढ़ेंगे। ए इन द गिवन रिएक्शन इज, बेटा आपको ए बताना है इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा। देखो ये एल्डिहाइड है ना, और यहाँ पे आप एल्कोहल दे रहे हो। एल्डिहाइड से एल्कोहल से रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, आपको याद है हेमी एसिटल्स बनते थे, है ना। हेमी एसिटल्स, हेमी एसिटल में क्या होगा कि देखो पहले क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये कंपाउंड है आपका, ये फर्स्ट कंपाउंड है। तो हेमी एसिटल में बेटा होता क्या है, कैसे हेमी एसिटल में अल्कोहल का जो H है ये ऑक्सीजन पे आके लग जाता है, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन कार्बन पे आके लग गया इस पॉइंट पे, है ना। तो स्ट्रक्चर क्या बन गया बेटा, अगर आप स्ट्रक्चर इसका बनाए तो कहने से ये बन गया आपका OH, है ना। इसके H लिखने की तो जरूरत नहीं है, और इस कार्बन पे आके क्या लग गया, ये वाला O, ये वाला O। तो ये O लग गया इस कार्बन पे आके, राइट। और ये O ऑलरेडी क्या लगा हुआ है इसके साथ, एक 2 अल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं और साथ में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा हुआ है, ये बन गया, ठीक है। और क्योंकि मीडियम अपने एसिडिफाई कर रखा है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और ये जो अल्कोहल है ये मिलके जब एस्टर बना लेंगे, तो एस्टर बनाने से एक 5 मेंबर रिंग भी बन रही है हमारी, है ना। एस्टर कैसे बनेगा, जैसे यहाँ से H निकल गया और यहाँ से OH निकल गया। तो कहने से ये कार्बन का जो बॉन्ड है इस ऑक्सीजन के साथ बनेगा, इसके साथ ऐसे, तो एक 5 मेंबर की रिंग बन रही है। तो 5 मेंबर रिंग तो वैसे ही स्टेबल होती है ना। तो हमारा अगर फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, अगर हम फाइनल प्रोडक्ट लिखे, सो दिस इज इक्वल्स टू आफ्टर द रिमूवल ऑफ वाटर, ये तो ऐसे रहे 3 बॉन्ड,
यहाँ पे। अच्छा, इस कार्बन का जो बॉन्ड है ये बन गया ऑक्सीजन के साथ, ये वाले ऑक्सीजन के साथ, ये सी डबल बॉन्ड ओ लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे ये अल्काइल ग्रुप जिसपे 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, और ये ऑक्सीजन, ये स्ट्रक्चर बन गया। सो 1 2 3 4 5 मेंबर की रिंग बन गई हमारे पास। तो अब देखिए ऐसा किस केस में हो रहा है, कैन से दिस इज हैपनिंग एट इन ऑप्शन नंबर 4। So option number 4 is the right answer. Beta, acetal formation, again it is a completely NCERT question, completely NCERT question. आप देखो एल्डिहाइड कीटोन में आपको बड़े आराम से एसिटल फॉर्मेशन दिख जाएंगे यहाँ पे। ये एसिटल फॉर्मेशन पे शायद एक बार लास्ट पेपर के अंदर भी क्वेश्चन आ रखा है। ये रे बेटा एसिटल फॉर्मेशन, देखो कीटल एंड एसिटल। अगर आप मेरी प्रीवियस वीडियो देखेंगे उसके अंदर भी जो पिछला पेपर था उसके अंदर भी आपको एक क्वेश्चन दिखेगा, एसिटल फॉर्मेशंस। ठीक है, दीज आर एसिटल्स। जब एक ही कार्बन पे एक OH लग जाता है और OR लग जाता है उसको हेमी एसिटल बोलते हैं। फिर उसके बाद दोनों अगर OR लग जाए तो उसको एसिटल बोलते हैं। ठीक है, तो डायरेक्ट वहीं से ही आप देखिए कॉन्सेप्ट सारे वही हैं जहां से उठा रखा है। तो आगे बढ़ते हैं। कोई बाहर की रिएक्शन नहीं आई बेटा, कोई बाहर की रिएक्शन नहीं, जितनी मर्जी रिएक्शन पढ़ लो, जो रिएक्शन एनसीईआरटी में उसी का क्वेश्चन है। आगे चलो बेटा, नेक्स्ट कहता है अमोनियम सॉल्ट प्रोड्यूसेस हेज इन एटमॉस्फेयर, ओजोन गेट्स produced when atmospheric oxygen react with chlorine radical. Okay, polychlorinated biphenyls act as a cleansing solvent. Okay, blue baby syndrome occurs due to the presence of excess of sulfate ions in water. Correct answers from the options given below. बेटा आपको इसका करेक्ट आंसर आपने बताना है क्या हो। ये सारे जो फैक्ट्स हैं बेटा आपको एनसीईआरटी आपके चैप्टर जो है एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, इसमें बहुत क्लियरली मेंशन्ड है। और कहाँ कहाँ मेंशन्ड है मैं आपको सारे दिखाता हूँ। देखो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री चैप्टर हमने खोला। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अमोनियम आइंस के बारे में कि वो हेज प्रोड्यूस करते हैं अमोनियम सॉल्ट्स। बेटा ये आपको अगर आप पढ़ेंगे ना एसिड रेन्स, ये एसिड रेन, हाँ एसिड रेन। देखो एसिड रेन में एज यू कैन सी इट इज क्लियरली मेंशन्ड हियर, अमोनियम सॉल्ट्स आर आल्सो फॉर्म्ड एंड कैन बी सीन एज एन एटमॉस्फेरिक हेज। तो आप देख रहे हो कि एटमॉस्फेरिक हेज प्रोड्यूस करते हैं ये, है ना। देखो कितना क्लियरली मेंशन्ड है। तो यानी कि ये स्टेटमेंट तो सही होगी, ऑप्शन ए इज राइट, है ना। बी पे आते हैं, ओजोन गेट प्रोड्यूस्ड व्हेन एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन रिएक्ट विद क्लोरीन रेडिकल। बेटा ये तो गलत है, क्लोरीन रेडिकल्स आर रिस्पांसिबल फॉर द डिप्लीशन ऑफ ओजोन, ना कि प्रोडक्शन ऑफ ओजोन। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन ए सही है, बी गलत है। देखो बी कहाँ सही दे रखा है, यानी कि 2 और 4 तो आंसर नहीं हो सकते, ए सही है। ठीक है, तो हमने सीओडी चेक करना है, सीओडी में से कौन सही है। चलो सी देखते हैं। बेटा सी है, कहता है फ्लोरिनेटेड बाइफिनाइल्स एक्ट एज अ क्लींजिंग एजेंट। देखो पोली क्लोरिनेटेड बायोफिनाइल्स एक क्लींजिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। ये भी हमारी एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में गिवन है। कहाँ गिवन है, देखो जहाँ पे बेटा केमिस्ट्री, ये देखना केमिकल ऑक्सीजन डिमांड हमें दे रखा है। बेटा इसको बहुत ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, मैं बता रहा हूँ आपको, डायरेक्ट वहीं से लाइन से क्वेश्चन उठा रहे हैं ये। देखो केमिकल पोल्यूटेंट्स जहाँ पे गिवन है हमें, तो वहां पे आपको मिल जाएगा। ये देखो पीसीबीज गिवन है, वेरियस इंडस्ट्रियल केमिकल्स, यहाँ पे देखिए called polychlorinated biphenyls which are used as a cleansing agent, detergent and fertilizers। ठीक है ना। तो पॉलीक्लोरिनेटेड बाइफिनाइल जो है एक क्लींजिंग एजेंट की तरह काम करता है। ये हमारी एनसीईआरटी में बहुत क्लियरली मेंशन्ड है और आपको पता होना चाहिए। आप लोग नहीं पढ़ते हो ना, जो मैं बार बार आपको इसलिए डांटता हूँ कि आप पढ़ते क्यों नहीं हो एनसीईआरटी। देखो आपको सारा क्वेश्चन वहीं से आया हुआ, तो ए एंड सी राइट, सिर्फ यही होगा आंसर, और तो कोई बन नहीं रहा। डी वाला तो गलत ही होगा। ठीक है, वैसे मैं दिखा देता हूँ ब्लू बेबी सिंड्रोम कहाँ गिवन है। बेटा ब्लू बेबी सिंड्रोम भी आपको ना जहाँ पे ये देखिए ब्लू बेबी सिंड्रोम आपको मिलेगा इस केस में, नाइट्रेट्स, एक्सेस ऑफ नाइट्रेट्स होने के कारण होता है ये ब्लू बेबी सिंड्रोम। ये देखिए क्लियरली मेंशन। ठीक है ना, उन्होंने सल्फेट्स लिखा हुआ है, एक्चुअल रीजन क्या है आपको मैंने बता दिया, नाइट्रेट्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर हो गया ऑप्शन 3। 49 क्वेश्चन पे
यस बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर बेटा हमसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज द वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। देखो सबसे पहले तो वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है। आपको पता है मेटल जो होते हैं, मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की नहीं होती, इलेक्ट्रॉन लूज करने की होती है। ठीक है, तो जो मेटल जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है, जितना ज्यादा मेटल को लूज करने की टेंडेंसी रखता है, उसका उतना ही जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो नेगेटिव हो जाता है। क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल होता है इलेक्ट्रॉन को गेन करने की पावर। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल कहने से और ज्यादा नेगेटिव हो जाएगा। ओके, और अब बेटा देखो, अगर खुद इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो दूसरे को रिड्यूस कर रहा है, तो रिड्यूसिंग पावर क्या होगी उसकी, ज्यादा हो जाएगी। तो यानी कि जो इजिली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, ईज ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन जितनी ज्यादा होगी, देखो हम यहाँ पे इस पॉइंट को, मैं सारी पॉइंट्स को लिखता हूँ, ईज ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगी उतना ही जो ई नॉट रिडक्शन है वो नेगेटिव होगा, है ना, उतनी उसकी नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होगी। और जितनी नेगेटिव वैल्यू ज्यादा होगी, अब देखो जितना इलेक्ट्रॉन को लूज करने की पावर ज्यादा होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, है ना। तो देखो इनकी स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, उसके रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू उतनी ज्यादा नेगेटिव होती है। तो वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट जिसके रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू सबसे कम नेगेटिव है। तो हमने देखना है कि इन चारों में से किसके रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू सबसे ज्यादा, सबसे कम नेगेटिव होती है। तो कुछ सबसे ज्यादा नेगेटिव तो हमने पढ़ा हुआ है कि सबसे ज्यादा नेगेटिव तो लिथियम की होती है, एक्सेप्शनल बिहेवियर ड्यू टू एक्सेसिव हाइड्रेशन, राइट। एनसीईआरटी में प्रॉपर डेटा है। लेकिन बाकियों के लिए तो देखिए, बाकियों के लिए सबसे कम जो नेगेटिव वैल्यू होती है दैट इज फॉर सोडियम, तो सोडियम इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आपको हो तो मैं आपको भी डेटा दिखा देता हूँ बेटा। ये एनसीईआरटी देखो, सारा ही चैप्टर, सारे ही चीजें ये एनसीईआरटी से पूछी गई हैं। देखिए सोडियम का डेटा यहाँ पे, यस इट इज गिवन ओवर हियर, रिडक्शन पोटेंशियल। अब देखो सबसे ज्यादा नेगेटिव जो है वो तो लिथियम के लिए है, और सबसे कम नेगेटिव किसके लिए, जस्ट नेक्स्ट टू इट सोडियम के लिए, है ना। तो इसका सही आंसर मैंने आपको दिखा दिया, तो दैट इज ऑप्शन 4। ओके, हाँ जी बेटा, एक क्वेश्चन, अच्छा ये नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स बतानी थी हमने, तो ए तो हो गया इनकरेक्ट। वाटर वेपर्स आर एड्सॉर्ब्ड, एड्सॉर्ब्ड नहीं होता, दे आर एब्सॉर्ब्ड। ठीक है, ये आप सरफेस केमिस्ट्री चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट इज देयर इज अ डिक्रीज इन सरफेस एनर्जी ड्यूरिंग एड्सॉर्प्शन। देखो सरफेस एनर्जी तो डिक्रीज करती है एड्सॉर्प्शन के दौरान, ये बात तो सही है, तभी एड्सॉर्प्शन होता है, राइट। क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेज ओवरकम, अट्रैक्टिव फोर्सेज आ जाती हैं तो सरफेस एनर्जी ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर जाती है। नेक्स्ट इज एज द एड्सॉर्प्शन प्रोसीड डेल्टा एच बिकम्स मोर एंड मोर नेगेटिव। ये गलत है बेटा, डेल्टा एच जो है वो लेस नेगेटिव होता रहता है, ठीक है, क्योंकि सरफेस एनर्जी कम होती रहती है, तो जिसके कारण क्या होता है वो लेस नेगेटिव होता रहता है, मतलब कम एनर्जी निकलना स्टार्ट हो जाती है धीरे धीरे। पहले तो बहुत ज्यादा निकलते हैं क्योंकि सरफेस एनर्जी क्योंकि जो सरफेस फोर्सेज में डिफरेंस है, ठीक है, इनवर्ड एंड आउटवर्ड फोर्सेस के अंदर वो बहुत ज्यादा है, लेकिन धीरे धीरे वो डिफरेंस ओवरकम होता जा रहा है एज द मॉलिक्यूल्स स्टार्ट्स गेटिंग एड्सॉर्ब्ड। तो नेक्स्ट इज एड्सॉर्प्शन इज अकम्पनीड बाय डिक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। देखो एड्सॉर्प्शन जब होती है तो गैस के मॉलिक्यूल्स आके एड्सॉर्ब हो जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि ओवरऑल रैंडमनेस जो है सिस्टम के अंदर वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सो इट इज ट्रू। तो यानी कि इसमें जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है हमारी वो कितनी है, दो स्टेटमेंट यहाँ पे ऐसी हैं जो कि इनकरेक्ट है। अगेन आई वांट टू शो दिस क्वेश्चन that it is directly asked from NCERT and where it is asked from. So this is surface chemistry chapter. Okay, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत आसान भी है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो बहुत आसान भी है। तो यस, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ जो जहाँ जहाँ पे लाइंस मेंशन्ड है हमें। तो देखिए एड्सॉर्प्शन इज एसेंशियली सरफेस फिनोमिना, ये सब बातें। डिस्टिंक्शन बिटवीन एड्सॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन, बेटा यहाँ पे शायद आपको वो डिफरेंस मिल जाएगा जो मैंने एग्जांपल लिया था आपके सामने, कैल्शियम क्लोराइड का। तो देखो यहाँ पे लिखा है ना, वाटर वेपर्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड। देखो उन्होंने एड्सॉर्ब लिखा था, तो यहाँ पे होना क्या चाहिए, एब्जॉर्ब। तो ये बात गलत हो गई है, ठीक है, देखो वो डायरेक्टली मैंने बता दिया आपको। अच्छा, इसके बाद एड्सॉर्प्शन अराइजेस ड्यू टू द फैक्ट दैट सरफेस पार्टिकल्स ऑफ द एड्सॉर्बेंट आर नॉट इन द सेम एनवायरनमेंट एज द पार्टिकल इनसाइड द बल्क। Inside the adsorbents, all the forces acting between the particles are mutually balanced. तो रिगार्डिंग एनर्जी भी शायद यहाँ पे लिखा होगा, यस रिगार्डिंग एनर्जी शायद अगले पैराग्राफ में है, तो देखते हैं। Another important factor featuring adsorption is the heat of adsorption. During adsorption, there is always a decrease in residual forces of the surface. There is a decrease in surface energy, which appears as heat. Adsorption, therefore, is invariably an exothermic process. In other words, delta H of adsorption is always negative. When a gas is absorbed, the freedom of movement of its molecule becomes
रिस्ट्रिक्टेड, दिस अमाउंट टू डिक्रीज इन एंट्रोपी। तो एंट्रोपी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है गैस की आफ्टर द एड्सॉर्प्शन, ठीक है ना। तो एड्सॉर्प्शन इज दस अकम्पनीड बाय डिक्रीज इन एंथैल्पी एंड डिक्रीज इन एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम फॉर अ प्रोसेस टू बी स्पॉन्टेनियस एंड, बेटा वो बाकी फिर आगे की बात है, ठीक है। तो देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सारा कुछ जो आपको यहाँ पे पॉइंट्स लिखे हुए हैं सारे एनसीईआरटी के अंदर मैंने 2-3 पॉइंट्स आपको दिखा दिए, बाकी थोड़ा और रीड करेंगे आपको और पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कितनी होगी, ए एंड सी। अच्छा एक क्वेश्चन हम लोगों ने मिस कर दिया था, तो वो भी उस पर भी आते हैं। कहते टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एजीसीएल प्रेसिपिटेटेड ऑन एडिशन ऑफ एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट टू 1 मोल ईच ऑफ, बेटा आपने एक मोल ईच ऑफ ये वाला कंपाउंड लिया, एक ये, एक आपने ले लिया ये वाला कंपाउंड, एक आपने ले लिया ये वाला कंपाउंड PTNH3 वोल्ट वाइज Cl2, है ना, और एक आपने ले लिया ये वाला कंपाउंड PDNH3 Cl2। अब बेटा देखो जब इसके एक मोल को आप डिसोशिएट करेंगे तो कहने से एक मोल ही Cl नेगेटिव आयन निकलेगा, यही वाले Cl नेगेटिव आयनाइजेबल होते हैं। यहाँ पे 2 मोल Cl नेगेटिव आयन बनेंगे, यहाँ पे तो कोई Cl नेगेटिव आयन बनेगा ही नहीं, और यहाँ पे भी 2 मोल Cl नेगेटिव आयन बनेंगे। और जितने मोल Cl नेगेटिव आयन यहाँ पे बन रहे हैं, कहते उतने मोल ही Cl नेगेटिव आयन Ag प्लस आयन के साथ रिएक्ट करेंगे और क्या बना लेंगे, उतने ही मोल AgCl बना लेंगे, है ना। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ AgCl जो प्रेसिपिटेट करेगा by taking 1 mole each of this compound, can you say that would be, can you say 5 moles, 5 moles, क्योंकि 5 moles ही क्लोराइड आयन है हमारे पास, और लिमिटिंग रेजेंट यहाँ पे कौन है, क्लोराइड आयन, बिकॉज सिल्वर आयंस आर इन एक्सेस, ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन करना था आपको। आगे बढ़ते हैं, तो 52 हो गया, 51 हो गया, यस, हाँ जी 53 पे आते हैं। द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स पर मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोकार्बन ए हैविंग 85.8% कार्बन इज गिवन मोलर मास ऑफ ए इज 84। बेटा देखो आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है। तो उसके लिए इंपेरिकल फॉर्मूला चाहिए, तो आप देखिए कंपाउंड ए के अंदर कार्बन कितना है, 85.8, तो हाइड्रोजन कितना होगा परसेंटेज वाइज, कैसे निकालते हैं इंपेरिकल फॉर्मूला, पहले मास लिखते हैं, है ना, फिर इनके नंबर ऑफ मोल्स लिखेंगे। चलिए पहले मास लिख लिया, कार्बन का इतना है, हाइड्रोजन का कितना आ जाएगा बच्चे यहाँ से, आई कैन से 14.2। चलिए नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, तो 85.8 बाई 12, ठीक है, ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया, 7 के आसपास आ गया, 7.1, और ये है 14.2 बाय 1, तो ये उनका 14.2। उसके बाद बेटा हमने रेशो निकालनी है, तो हम क्या करेंगे, जो स्मॉल वैल्यू है उससे हम सबको डिवाइड कर देंगे, तो स्मॉलर वैल्यू कौन सी है यहाँ पे आई है 7.1, तो 7.1 से सबको डिवाइड कर देंगे, तो 7.1 बाय 7.1, 14.2 बाय 7.1, तो रेशो कितनी आ गई 1, ये आ गई 2, तो यानी कि फॉर्मूला क्या बन गया CH2। लेकिन ये फॉर्मूला कौन सा है बेटा, इंपेरिकल फॉर्मूला है, और मोलिकुलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चे इसका, उसके लिए आपको इंपेरिकल फॉर्मूला को एक नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा n से, और n की वैल्यू आप निकाल सकते हैं बाय मोलिकुलर फॉर्मूला मास। मोलिकुलर मास यहाँ पे 84 है, और इंपेरिकल फॉर्मूला का जो मास आप लिखेंगे यहाँ पे, इंपेरिकल फॉर्मूला का मास कितना था 14, तो ये आ गया 6, तो यानी कि फॉर्मूला क्या बन गया C6H12। सो नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम पर मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे बेटा 12। सो सिंपली इंपेरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो 11th क्लास का पहला चैप्टर है उसके अंदर आता है ये, और वहीं से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया। तो आगे बढ़ते हैं। The number of given orbit which have electron density along the axis, बेटा along the axis electron density किन की होगी, कहने से px py pz, इनकी तो डबल शेप होती है, एक्सिस के along की तो होती है, तो जैसे x एक्सिस और px हो गया, ऐसे py pz ये तो सारे तीनों होंगे ही होंगे। dxy, जैसे मैं एक xy बना के दिखाता हूँ आपको, dxy, तो ये तो इन बिटवीन द एक्सिस होता है, दिस इज नॉट ऑन द एक्सिस, तो इसलिए ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। dz स्क्वायर, यस इट इज अलोंग द एक्सिस, अब देखिए इसकी शेप कुछ इस तरह की होती है ना, तो इसके लोब्स हैं अलोंग द एक्सिस, तो ये हो जाएगा, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये हो जाएगा, तो टोटल कितने हो गए 5, तो राइट आंसर विल बी 5। आगे बढ़ते हैं, ये शेप आपको बेटा डायरेक्टली एनसीईआरटी में गिवन है। नेक्स्ट इज 28 लीटर ऑफ CO2 is produced on complete combustion of 16.8 liter gaseous mixture of ethene and methane at 25 डिग्री सेल्सियस, and this heat evolved during the combustion process is dash किलोजूल। बेटा देखो पहली बात तो आपको यहाँ पे ये निकालना है कि किसके कितने कितने मोल्स हैं, ठीक है। तो अब देखिए अगर हमारे पास इथीन है C2H4 और एक है मीथेन, देखो जब इनकी बर्निंग करोगे आप, तो बर्निंग करने पे कितने कितने मोल CO2 निकलेगा, क्या जैसे यहाँ से 2 मोल CO2 निकला और यहाँ से 1 मोल CO2 निकला, बाकी हमें CO2 से मतलब क्योंकि डेटा में CO2 का ही गिवन है,
तो अब देखिए, अगर लेट्स सपोज मीथेन हम एक्सीलेटर मान लेते हैं, तो कहने से 16 पॉइंट टोटल वॉल्यूम 16.8 थी, तो 16.8 माइनस एक्स हो गया। एंड बाय अप्लाइंग गेल-लुसाक्स लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम, तो इसके 1 मोल से इसका 2 मोल बनता है, तो 16.8 से इसके कितने मोल CO2, कितनी वॉल्यूम बन जाएगी CO2 की? हाँ जी, कितनी वॉल्यूम बन जाएगी CO2 की? 16.8 माइनस एक्स इंटू 2। और मीथेन के 1 मोल से 1 मोल CO2 बनता है, तो अगर x वॉल्यूम है मीथेन की एक्सीलेटर, तो CO2 भी एक्सीलेटर बनेगा। सो टोटल वॉल्यूम ऑफ CO2 फॉर्म्ड विल बी 28 लीटर्स। तो यहाँ से बेटा इक्वेशन बन गई आपकी क्वेश्चन के हिसाब से। तो यहाँ से आपका x आ गया, दिस इज 33.6 माइनस 28, तो आई कैन से x इज इक्वल टू 5.6। तो यानी कि जो x है आपका वो है 5.6 लीटर्स, है ना, यानी कि जो मीथेन गैस है वो 5.6 लीटर्स है। ओके, और जो इथेन गैस है ना, वॉल्यूम ऑफ इथेन गैस दैट इज 16.8 माइनस 5.6, कितना आ जाएगा ये? अप्रोक्सीमेटली 11.2। तो ये 11.2 लीटर। बट वैसे तो 0 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए था, तो आप डायरेक्टली मोल्स में कन्वर्ट कर सकते थे, चीज़ें बड़ी आसान हो जाती। तो अगर चलो मैं अभी इसको 25 डिग्री सेल्सियस नहीं लेता, मैं इसको अभी 0 डिग्री सेल्सियस में मान के ही कर लेते हैं, फटाफट आंसर निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथेन कितना हो जाएगा हमारे पास? दिस इज 0.5, और 1 मोल से बेटा कितनी निकलती है इथेन गैस? 1400, तो 0.5 से कितनी निकल जाएगी? 700। तो डेल्टा एच है ना फॉर इथेन 0.5 मोल्स के 700 किलो जूल हो गई। और इथेन के लिए कितना हो जाएगा? देखो ये हो गया 1/4 मोल ऑफ इथेन मीथेन। तो 1/4 मोल ऑफ मीथेन में हीट कितनी रिलीज होगी? दिस इज 900 का 1/4, ये कितना आ गया? 225 किलो जूल। तो टोटल हीट जो रिलीज हुई 700 किलो जूल यहाँ से, 225 यहाँ से, तो राइट आंसर कितना आ गया? 925 किलो जूल। तो 925 किलो जूल इज द राइट आंसर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज बेटा, ये देखो हमें एक सेल दे रखा है, तो कहता है कि आपने M पॉजिटिव बाय M3 पॉजिटिव, देखो ये पहले भी पेपरों के अंदर आ रखा है, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम लोग फटाफट करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है, इसके लिए हमें पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन की रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो एट एनोड क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन जो है हाफ मोल, या चलो 2 मोल ही ले लेते हैं, बैलेंस हो जाएगी 2 मोल। तो क्या बना रहा है? 2H प्लस आयन बना रहा है, साथ में एक इलेक्ट्रॉन बना रहा है। और कैथोड पे क्या हो रहा है बच्चे? कैथोड पे क्या है, M3 प्लस आयन जो है उन्हीं 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके M पॉजिटिव बना रहे हैं। तो इसकी नेट इक्वेशन क्या हो गई? कैन से हाइड्रोजन प्लस M3 पॉजिटिव गिव्स M पॉजिटिव प्लस 2H पॉजिटिव, है ना, ये हमारी नेट इक्वेशन हो गई। तो वैल्यू ऑफ A आपने निकालना है। ओके, इनकी इक्विलिब्रियम की वैल्यू निकालनी है आपने, ठीक है। तो ई सेल, हमें पता है ई सेल होता है ई नोट सेल, राइट। ई नोट सेल क्या हो जाएगा? देखो कैथोड माइनस एनोड, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल 0.2 गिवन है, एनोड का तो 0 है क्योंकि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। तो ये हो जाएगा, पहले जो फॉर्मूला लिख लेते हैं, ई नोट सेल माइनस 0.059/2 इंटू लॉग ऑफ, बेटा देखो H प्लस आयन और हाइड्रोजन का प्रेशर तो 1:1 ही दे रखा है ना, इनकी रेशो निकालनी है। तो लॉग ऑफ क्या बन जाएगा? M पॉजिटिव आयन अपॉन M3 पॉजिटिव आयन, जिसकी वैल्यू हमने क्या निकाली हुई है? 10⁻A। तो बेटा सबकी वैल्यू पुट कर देते हैं। ई सेल है 0.1115, ई नोट सेल 0.2, और ये है 0.059/2। ये बेटा log 10A, log 10A कितना आ जाएगा? A आगे आ जाएगा, तो ये log A हो गया 0.059, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन आ गई, दिस इंप्लाइज दैट 0.059A/2 इक्वल्स टू 0.2 माइनस 0.1115, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? कहने से 588.0885, ठीक है। तो यहाँ से बेटा ए की वैल्यू अगर आप निकाल लेंगे, ए टी की वैल्यू आ जाएगी 0.0885 अपॉन 0.059 इंटू 2, ठीक है। तो बेटा इसको आपने सॉल्व करना है, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो देखो कितना आएगा, है ना। इसको बेटा अगर हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए, दिस विल कम्स आउट टू बी 30.13, ठीक है। तो ए की वैल्यू आपकी आ जाएगी 30.13, दिस इज द राइट आंसर।
सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 56 बेटा, बेस्ड फॉर नॉन्स्ट इक्वेशन। पहले बहुत बार नॉन्स्ट इक्वेशन के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 57 पे आता है, नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सॉल्यूशन हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। बेटा सेम वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर कब होगी? जब इफेक्टिव कंसंट्रेशन सेम होगी। और इफेक्टिव कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं? आई इंटू कंसंट्रेशन, ये होती है इफेक्टिव कंसंट्रेशन। बस आपने ये देखना कि इफेक्टिव कंसंट्रेशन दोनों सॉल्यूशन की सेम होगी तो उनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे इसकी तो आयनाइजेशन होती नहीं है, ठीक है, तो 0.5 आई, जिसकी आयनाइजेशन होती है उसका I1 हो गया, तो 0.5 हो गया। और इसकी आयनाइजेशन होती है तो ये कंप्लीट आयनाइजेशन होगी तो I2 हो गया, तो 2 इंटू 0.25 0.5। तो कहने से ये तो यस दे हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। आगे चलते हैं बेटा, देखो इसका I5 है क्योंकि ये एक मॉलिक्यूल टूट के पांच पार्टिकल्स बना लेगा, 4K प्लस आयन और एक ये कॉम्प्लेक्स। तो 5 इंटू 0.1 0.5 और ये हो गया बेटा, देखो ये एक मॉलिक्यूल टूट के कितने आयंस देगा? 2 ये हो गया, 3 ये हो गया, 5। 5 इंटू 0.1 ये भी 0.5 हो गया, ये भी बिल्कुल सही है। इफेक्टिव कंसंट्रेशन दोनों की बराबर है। यहाँ पे देखिए ये 5 आयंस देगा, 0.05 इंटू 5 0.25 और यह 0.25 इंटू 2, ये देखो ये 2 आयन देगा, तो कितना आ गया? इसका I2 है तो ये आ गया 0.5, तो इनका तो बराबर नहीं है तो ये हटाओ इसको। आगे चलते हैं, इसका I2 है 2 इंटू 0.15 0.3 एंड ये देखो इसका I3 है 3 इंटू 0.1 0.3, ये बिल्कुल सही है, ये आ जाएगा आंसर। बेटा देखो इसका एक मॉलिक्यूल टूट गया, कितने आयंस फर्निश करने वाले हैं, कितने पार्टिकल देने वाले हैं? 5, तो 5 इंटू 0.02 0.1 एंड ये 0.05 इंटू 1 2, क्योंकि इसका I2 है तो 0.1, तो ये भी सही आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर कितना आ गया? तो 4 पेयर ऐसे हैं जिनमें ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू सेम आने वाली है। सो दिस इज हाउ वी हैव टू डू दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बेटा ये रिएक्शन जो है ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है। तो रेट कांस्टेंट आपको दे रखा है, राइट। तो K इज गिवन टू अस एज 4.6 इंटू 10⁻³ सेकंड इनवर्स। तो अपने करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है क्या होगा, ठीक है। तो कहता है रिएक्शन कंप्लीट्स इन 1000 सेकंड। K की वैल्यू के साथ बेटा जो आपको दे रखी है, देखो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हमें यहाँ से पता लग रहा है। और अब कहता है रिएक्शन कंप्लीट इन 1000 सेकंड। देखो ये बात तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो इट नेवर गेट्स टू कंप्लीशन, ठीक है ना। सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो कभी भी कंप्लीट हो ही नहीं सकती है, तो ए स्टेटमेंट तो गलत हो गई। बी पे आता है रिएक्शन एज अ हाफ लाइफ ऑफ 500 सेकंड्स। तो को हाफ लाइफ आप निकाल सकते हो, टी हाफ क्या होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए? 0.693 बाई के। तो वैल्यू पुट कर लेते हैं, 0.693 बाय के अगर आप करेंगे 4.6×10⁻³ तो देखिए किसी भी तरह से ये वैल्यू 500 सेकंड्स तो नहीं बन रही है ना। 500 सेकंड्स तो नहीं बनेगी, तो बी भी गलत है। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन इज 25 द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन। बेटा वो देख लेते हैं, देखो टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन फॉर बाय टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90% कंप्लीशन निकाल के देख लेते हैं। बेटा पहली बात तो ना यहाँ पे स्टेटमेंट ही थोड़ा सा वेग है। कहता है टाइम रिक्वायर्ड फॉर 10% कंप्लीशन इज 25 टाइम्स द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 90। बेटा देखो 10% कंप्लीट होने के लिए टाइम तो कम लगेगा ना, 90% के लिए टाइम ज़्यादा लगेगा, तो ये 10% के लिए टाइम 25 गुना ज़्यादा लग रहा है, तो ये तो कभी हो ही नहीं सकता, ये तो वैसी स्टेटमेंट गलत होगी। लो थोड़ा प्रेजेंस ऑफ माइंड रखोगे आप, कितने आराम से आप स्टेटमेंट पकड़ सकते हो। अच्छा, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इक्वल टू 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस के टी। बेटा आप देखो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है कि फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल डिसोशिएटेड। आपको पता है कि अगर टी टाइम निकल जाता है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में जो मॉलिक्यूल बच जाते हैं, मॉलिक्यूल्स लेफ्ट आफ्टर टी टाइम दैट इज इक्वल टू एन नॉट इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस के टी। तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स लेफ्ट कितने हो जाएगा? फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल डिसोशिएटेड, कितने मॉलिक्यूल बेटा डिसोशिएटेड हो गए? देखो जितने थे एन नोट थे, है ना, उसमें से इतने बच के अपॉन एन नोट जितने थे, है ना। तो एन नोट, ये वाला एन नोट कैंसिल आउट हो गया, तो 1 माइनस ई रेज़ टू पावर माइनस के टी आ गया, तो ये वाली बात तो बिल्कुल सही होगी। अच्छा कहता है रेट एंड रेट कांस्टेंट है द सेम यूनिट। ये मतलब तो बात गलत है, रेट की यूनिट होता है मोल पर लीटर पर सेकंड, और जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है उसके रेट कांस्टेंट यूनिट यहाँ पे लिखे हुए हैं सेकंड इनवर्स, तो ये तो गलत हो गया ये वाली बात। तो इनकी सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा? न्यूमेरिकल नंबर 1। आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़ते हैं 59। बेटा अगेन रिलेटेड टू सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन आ गए हैं, ये दूसरा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर लग रहा है। आगे बढ़ते हैं। कहते सरफेस टेंशन इज द आउटकम ऑफ इक्वल अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस एक्टिंग ऑन द लिक्विड मॉलिक्यूल्स इन बल्क। बेटा ये बात तो बिल्कुल गलत है।
बल्क के अंदर क्या हो रहा है उसको सरफेस से क्या लेना देना, है ना, ये बात तो गलत हो गई। अगर द सरफेस टेंशन इज ड्यू टू अनइवन फोर्सेस एक्टिंग ऑन द मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस, यस दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, बिकॉज जो मॉलिक्यूल सरफेस पे है उसको इनवर्ड फोर्स तो लग रहा है लेकिन ऊपर को फोर्स नहीं लग रहा है, तो अनइवन फोर्सेस जो लग रही हैं उसके कारण सरफेस टेंशन आती है, बिल्कुल सही बात है। सी बात कहता है मॉलिक्यूल इन द बल्क कैन नेवर कम टू द लिक्विड सरफेस, कहता है जो बल्क के मॉलिक्यूल वो कभी सरफेस पे नहीं आ सकते। बेटा बल्क के मॉलिक्यूल तो फ्री होते हैं क्योंकि उन पर तो जो फोर्सेज है वो हर तरफ से बराबर लग रही होती हैं, तो वो तो कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, बल्कि है वो तो कहीं पर भी जा सकते हैं, तो ये बात तो बिल्कुल ही गलत हो गई, है ना। डी पार्ट पे आते हैं। द मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेपर प्रेशर सिस्टम इज अ क्लोज सिस्टम, कहता अगर सिस्टम क्लोज कर दो तो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होते हैं वही वेपर प्रेशर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स होते हैं उन्होंने तो वेपर बनाना है, अगर वो वेपर बनाएंगे उसी कारण तो प्रेशर एक्सर्ट होगा, तो तभी वेपर प्रेशर एक्सर्ट होगा, तो यानी कि स्टेटमेंट 2D सही है, तो दो स्टेटमेंट सही हैं, तो इसका सही आंसर हमारे लिए क्या आ जाएगा, न्यूमेरिकल नंबर 2। ठीक है, अब इस पेपर के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बेटा लास्ट क्वेश्चन है, कहता है नंबर ऑफ कंपाउंड्स गिविंग नंबर 1 रेड कलरेशन विद सैरिक अमोनियम नाइट्रेट, बेटा सैरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ रेड कलरेशन कौन देते हैं, ये देते हैं अल्कोहल्स, अल्कोहल्स। एंड आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देते हैं, आपको पता होगा आइडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए मेन कंडीशन क्या होती है, या तो CH3CHOH ग्रुप लगा हो या फिर CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप लगा हो। अब अगर किसी के दिमाग में ये आता है यार सैरिक अमोनियम नाइट्रेट तो हमें गिवन ही नहीं है ना, एनसीईआरटी में तो गिवन नहीं है, बेटा एनसीईआरटी में गिवन नहीं है, सही कह रहे हो, लेकिन लैब मैनुअल में तो गिवन है ना। लैब मैनुअल खोलो, ये देखो ये लैब मैनुअल खोला मैंने आपके लिए, ये लैब मैनुअल मैंने खोला है, कंपाउंड का नाम, चैप्टर का नाम है टेस्ट फॉर फंक्शन ग्रुप्स इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो बेटा देखो टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन हमें दे रखा है, हमें अनसैचुरेशन नहीं देखना, हम एल्कोहल्स के टेस्ट पे आते हैं। देखो टेस्ट फॉर एल्कोहल्स ये रहा, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। तो एल्कोहल कंपाउंड्स ऑन रिएक्शन विद सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, देखो यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है, गिव अ रेड कलरेशन ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है ना। तो यानी कि सारे अल्कोहल सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट देते हैं, तो ये स्टेटमेंट से आपको पता लग गया कि अपने अल्कोहल आइडेंटिफाई करना है। और और रिगार्डिंग आइडोफॉर्म टेस्ट, बेटा आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है, आइडोफॉर्म टेस्ट के लिए जो कंडीशन होती है, आई थिंक आइडोफॉर्म टेस्ट ऊपर रह गया, हम लोग मिस कर गए, हाँ जी, इथेनॉल एंड सेकेंडरी अल्कोहल विच कंटेन CH3CHOR ग्रुप गिव्स आइडोफॉर्म रिएक्शन, है ना, देखो यहाँ पे ये स्टेटमेंट गिवन है आपको, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, तो देखो हम फटाफट इस क्वेश्चन पे आए अब, है ना, अब आंसर करना बेटा हम लोगों ने क्वेश्चन ये। तो देखो अल्कोहल ग्रुप होना चाहिए, तो अल्कोहल जिन पे अल्कोहल नहीं है पहले तो उनको हटाओ, दिस ये भी हटाओ, ये भी हटाओ, बस बाकी है, बाकी अब दूसरा जिसमें CH3CHOH ग्रुप होता कि आइडोफॉर्म टेस्ट भी है, तो CH3CHOH इसके अंदर, तो इसके अंदर है, यस इसके अंदर है, देखो CH3CHOH, यस इसके अंदर नहीं है बेटा, देखो यहाँ पे CH3 तो है ही नहीं कहीं ग्रुप लगा हुआ, तो ये हटाओ इसको, CH3CHOH इसके अंदर है, यस इसके अंदर CH3COH है, CH3CHOH नहीं है, तो इसके अंदर भी नहीं है। तो सिर्फ कितने कंपाउंड है जिनके अंदर बेटा एक ग्रुप आपको आ रहे हैं, दोनों टेस्ट हो पाएंगे, वो है न्यूमेरिकल नंबर 3। सो दिस इज द पेपर, बेटा आप देखो मैंने सारे क्वेश्चन आपको दिखा दिए जो एनसीईआरटी से पूछे गए हैं, सारा पेपर ही एनसीईआरटी से पूछा गया है, तो इसलिए बेटा एनसीईआरटी को आप नहीं छोड़ सकते, बिना एनसीईआरटी को किए अगर आप जाएंगे पेपर के अंदर, यू विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन डूइंग द क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि आपने किताबें तो बहुत बड़ी बड़ी पढ़ रखी होंगी लेकिन पूरी तो कोई भी नहीं पढ़ी होगी, राइट, तो काफी सारे कॉन्सेप्ट आपके रह चुके होंगे, लेकिन तो इसलिए अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, और वो भी मैंने आपको कितनी बार बोला है, कम से कम 5 बार, 5 बार पढ़ेंगे तो जाके आपको सारे फैक्ट्स जो होंगे वो याद होंगे, और फैक्ट्स अगर याद होंगे तो आप बड़े आराम से जेई मेंस के अंदर तो आप 100% को पक्का समझो, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर एंड फॉर योर प्रिपरेशन, थैंक यू एवरीवन।